नमस्ते दोस्तों, प्रगतिज लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे डेज, मंथ्स, डेट्स इन डेली लाइफ। बहुत ही काम का और रोज इस्तेमाल होने वाला। और जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हमारा तरीका थोड़ा अलग है। पहले सुनो, फिर हिंदी में समझो, फिर असली इंग्लिश एग्जाम्पल्स देखो, फिर बोलो प्रैक्टिस करके, फिर रोज इस्तेमाल करो और फिर दोहराओ। इसी लूप से बिगिनर से एडवांस तक पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम एक प्यारी कहानी सुनेंगे जो हमारे जीवन में दिनों, महीनों और तारीखों का महत्व बताती है। ये बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी जरूरी है, ये समझेंगे। चलो, पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। इन आवर डेली लाइव्स, वी ऑफन रेफर टू डेज, मंथ्स एंड डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, we tell our friends when to meet or plan events. It helps us keep track of time and remember important occasion. Today is Monday and I have a meeting scheduled for Wednesday. My birthday is in July and I am planning a party. We go shopping every Saturday to buy groceries. Valentine's Day is on 14th February and I want to surprise my partner. Next month, we will travel to the mountains for a vacation. अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका नाम था बाबा। बाबा हमेशा कहते थे कि जिंदगी के हर दिन का महत्व है। Once upon a time, in a small village, there lived an old man named Baba. Baba always said that every day in life is important. He would wake up every morning and greet the sun, saying, "Today is a new day." He would remind the children, "Every Saturday, we will meet to tell stories." On the first day of each month, Baba would plant a new tree in the village. Baba celebrated his birthday on the last day of December with all the villagers. He loved to say, "Every date has a story to tell." बाबा की बातें सभी गांव वालों को पसंद थी। उन्होंने यह सीखा कि हर दिन, हर महीना और हर तारीख का अपना एक महत्व है। The villagers loved Baba's words. They learned that every day, every month, and every date has its own significance. So remember, just like Baba taught us, each day is a chance to start fresh and make beautiful memories. तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। याद रखो, हर दिन को खास बनाओ। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने फोक टेल द थ्री लिटिल गोट्स के बारे में बात करेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। Once upon a time, there were three little goats who lived in a beautiful valley. One day, they decided to go out to eat some grass. तो अब हम कुछ नए शब्द सीखते हैं। वैली का मतलब होता है घाटी और डिसाइडेड का मतलब है निर्णय लेना। But there was a big, bad wolf who wanted to eat them. The first goat, who was very small, crossed the bridge. यहाँ वुल्फ का मतलब है भेड़िया
और crossed का मतलब होता है पार करना। The wolf stopped him and said, "Who is that trip-trapping over my bridge?" Trip-trapping का मतलब है खटपट करना। यह एक मजेदार शब्द है। सोचिए, जब आप घर में चल रहे हों, तो क्या आप खटपट कर रहे हैं? The little goat replied, "I am the littlest goat. My brothers are bigger than me." यहाँ brothers का मतलब है भाई और bigger का मतलब है बड़ा। The wolf was angry, but he let the first goat go. Then he waited for the second, who was a bit bigger. देखिए, यह कहानी हमसे सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। The second goat crossed the bridge and the wolf stopped him too, asking the same question. Stopped का मतलब है रोकना। याद रखें, जब कोई हमें रोके, तो हमें धैर्य से जवाब देना चाहिए। Finally, the third goat, who was the biggest, came up to the bridge. The wolf thought he could catch him easily. Finally का मतलब है आखिरकार। ऐसे समय होते हैं जब हम किसी चीज का इंतजार करते हैं। But the big goat was clever. He said, "You think you can catch me? Try your best." Clever का मतलब है चतुर और try your best का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करना। यह हमें सिखाता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। The wolf tried, but the big goat pushed him away. The three goats lived happily ever after. इस कहानी का नैतिक है, बुद्धि और साहस से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह एक सीधी सी बात है। तो दोस्तों, कहानी ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिन, महीने और तारीखों के बारे में बात करते हैं। Today is Monday and I will go grocery shopping with my mom. आज सोमवार है और मैं अपनी माँ के साथ किराने की दुकान पर जाऊंगा। Next week, we have a family gathering on Saturday. अगले हफ्ते हमारे पास शनिवार को एक पारिवारिक समारोह है। My birthday is in June and I am excited to celebrate. मेरा जन्मदिन जून में है और मैं जश्न मनाने के लिए उत्साहित हूँ। Every morning, I wake up at 7 a.m. to have breakfast with my family. हर सुबह मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करने के लिए सुबह 7 बजे उठता हूँ। We clean the house every Sunday afternoon. हम हर रविवार को दोपहर को घर साफ करते हैं। My dad watches football matches every Saturday evening. मेरे पिताजी हर शनिवार की शाम को फुटबॉल मैच देखते हैं। On holidays, we go on family trips to different places. छुट्टियों में हम परिवार के साथ अलग-अलग जगहों पर यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, ये सब वाक्य हमें दिन, महीने और तारीखों के बारे में बताते हैं। आप भी इन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी आप दिन, महीने या तारीखें बोलें, याद रखें कि आपके पास बुद्धि और साहस है। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कुछ और मज़ेदार बातें करेंगे, जैसे कि दिन, महीने और तारीखें। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये कितने ज़रूरी हैं? चलिए, एक प्यारी सी कहानी के ज़रिए समझते हैं।
Once upon a time, there was a little girl named Lily who loved to count the days until her birthday. Her birthday was in June, and she would mark it on the calendar every day. यहाँ count the days का मतलब है दिनों की गिनती करना और calendar का मतलब है कैलेंडर। हमें अपने खास दिन, जैसे जन्मदिन, को याद रखने के लिए कैलेंडर का उपयोग करना चाहिए। One day, she decided to make a special plan for her birthday. She told her friends to join her on the 15th of June for a fun picnic. यहाँ स्पेशल प्लान का मतलब है विशेष योजना और फन पिकनिक का मतलब है मजेदार पिकनिक। दोस्तों, हम भी अपने दोस्तों को किसी खास दिन पर बुलाकर मजेदार योजनाएं बना सकते हैं। On the 1st of June, Lily was very excited. She wrote a list of things to do for the picnic, like games and snacks. यहाँ excited का मतलब है उत्साहित और list of things to do का मतलब है करने की चीजों की सूची। अपने खास दिन की तैयारी करते समय हम ऐसी सूचियां बना सकते हैं। As the days passed by, she counted each day on her calendar. Finally, on the 15th of June, it was time for the party. यहाँ passed by का मतलब है गुजरना। दोस्तों, जब हम किसी खास दिन का इंतजार करते हैं, तो हर दिन को गिनना बहुत अच्छा लगता है। Her friends came over and they had the best time playing games and enjoying delicious food. They talked about all the months and days they would remember forever. यहाँ best time का मतलब है सर्वश्रेष्ठ समय और delicious food का मतलब है स्वादिष्ट खाना। यादें बनाना हमेशा जरूरी होता है। The moral of the story is cherish the days and make special memories with friends and family. इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दिनों को संजोना चाहिए और दोस्तों और परिवार के साथ विशेष यादें बनानी चाहिए। At work, I will share my plans for the upcoming week. Like, let's meet on Monday to discuss our project. ऑफिस में मैं अगले हफ्ते की अपनी योजनाएं साझा करूंगा। जैसे, आओ सोमवार को हमारी परियोजना पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। During a phone call, I might say, can we schedule a meeting for Thursday? फोन कॉल के दौरान मैं कह सकता हूँ, क्या हम गुरुवार को एक बैठक की योजना बना सकते हैं? When shopping, I will ask the shopkeeper, what are the best items available this month? जब खरीदारी कर रहा हूँ, मैं दुकानदार से पूछूंगा, इस महीने कौन-कौन सी बेहतरीन चीजें उपलब्ध हैं? On WhatsApp, I can send a message, are you free this weekend for a get-together? WhatsApp पर मैं एक संदेश भेज सकता हूँ, क्या आप इस वीकेंड पर मिलने के लिए फ्री हैं? In an auto, I can tell the driver, please drop me off at the market next Saturday. एक ऑटो में मैं ड्राइवर से कह सकता हूँ, कृपया मुझे अगले शनिवार को बाजार पर छोड़ दें। When my boss asks about my availability, I will say, I am free next Friday for a meeting. जब मेरा बॉस मेरी उपलब्धता के बारे में पूछता है, मैं कहूँगा, मैं अगले शुक्रवार को बैठक के लिए फ्री हूँ। If a colleague asks about the deadlines, I can say, the project is due on the 30th of this month. अगर एक सहकर्मी डेडलाइंस के बारे में पूछता है, तो मैं कह सकता हूँ, यह परियोजना इस महीने की 30 तारीख को पूरी होनी है। तो दोस्तों,
आज हमने सीखा कि कैसे हम दिनों, महीनों और तारीखों का उपयोग करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संवाद कर सकते हैं। यह बहुत मजेदार है। उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने खास दिनों का इंतजार करें और उन्हें अच्छे से मनाएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए।